Inventory is a combination of stock group, is a combination of stock group, GROUP, stock group. This is the first thing. Combination of stock group. Then me and again stock item, combination stock item and stock category, stock category. Then again last unit of measure and unit of measure, unit of measure. This is called इन्वेंट्री. इन्वेंट्री में चार तरह की चीजें आते हैं. सबसे पहले आती है आपको स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, स्टॉक कैटेगरी, यूनिट ऑफ मेजर. अब मेरा सवाल ये है, स्टॉक ग्रुप क्या है? व्हाट इज स्टॉक ग्रुप? स्टॉक ग्रुप क्या होता है? विद द ग्रुप दैट मीन्स वी गेट एन आइडिया. ग्रुप तो एक बात समझ में आ गई. ग्रुप मतलब क्या है? व्हाट में ग्रुप? Multiple items. हाँ, multiple items. Group, combination of peoples standing together. So group. This is called a group. So next question. Example, can you give a stock group? Stock group, just now we had studied about laptop. Laptop एक group होता. अब laptop stock group कैसा होगा? Group. Unique name. It's a unique. item की वजह से. हाँ बिल्कुल. It's a unique item. Unique item. Unique item throughout all inventory. So it's called a unique material. Unique material in any form. For example, laptop. Laptop is a group. Laptop is a stock group. So anywhere, if you are keeping a laptop, we call it as laptop. Laptop. So laptop is a stock group. Clear? Example. Any other example? Computer. Motorbike. Very good. They call it as like electronics items, like उसको क्या बोलेंगे अपन? Automobiles item. Automobiles item. Electronic items. What is electronic items? What is an electronic item? Fridge, TV. Yeah, fridge, TV. Microwave. This all items. Electricity items. Tube light, Iron. fan, iron. For the examples. So, but that's called. If you tell that automobiles group, we get an idea. Bike, motorbikes, to like Chetak, motor, what everything will come. So even electronic items. And again, we go for like cosmetics items. Cosmetics. If I tell cosmetics, all the things will come in that. Cosmetics item. Okay. This is a group. Coming to that, kitchenware item. Kitchenware items, as we know that like knife in that,
knife is there, chopping board. ये पूरे चीज़ें we call it as kitchenware or like sanitary items. It will come. So that all we call it as a group. So this is called stock group. ये होगा आपको stock group sanitary items list. Up coming to that next. What is stock item? फिर और एक सवाल. What is stock item? For example, laptop Dell. Very good. So we call it as what is stock item? So stock item in the sense brand names of laptops. Example, we call it as brand names. Brand names of laptop. Brand names of laptop. What is the brand names of this? Brand names of example. I'm giving a laptop. Brand name of laptops is what is the brand names of brand names of laptop is just now it given brand name of Samsung laptop, Sony laptop, LG laptop. These are called what? These are the stock items. Toshiba laptop. So these are nothing but a stock item. But what is a like group? Just a laptop. Just a laptop. So laptop is a group, and the brand names of laptop it's called it as stock item. We get clear idea. So like same example you can give for the computers, even same example for give for TV, fridge, like or whatever it may be. वो सभी example of हो सकता है. So just like laptops में इतने computers में भी हो सकते हैं. आप जितने electronic items में भी will get an M1 of examples. Cosmetic items have n number of examples. Kitchenware items had n number of examples and sanitary items. But main thing is that a group and coming to that stock item. Up next thing. What is unit of measure? एक सवाल और एक सवाल आता. What is unit of measure? What is unit Number of of items. Very good. Number of items. Calculation units. Calculation units. Calculation units will come. हम उसको measure कैसा करेंगे? Laptops को measure कैसा करेंगे अपन? Because if you're selling your laptop business, so what is unit of measure? How the laptop is measuring? Laptop. Number. Very good. Numbers. So unit of measure example is unit of measure is example is numbers. We are measuring numbers. So what is the short form for numbers? If you are giving numbers, short form it's called NOS. What is short form? Numbers. And again for PIECES. So what is PCS? So that means how you are measuring piece. कितने piece का है भाई? कितने piece sale हुए आज laptop के? कितने piece purchase हुए? So that means called what that you are measuring that how it gets sales and good for liters. Liters means all liquid items measured in liters. So we call it as LTR liters. Then we call meters. Meters means what? All like cloth items and all measuring in meters. MTS or so this all called the unit of measure. Got an idea? And even for example gold how they're measuring gold का भी अगर calculation रहा like examples. So that means that all. So that means gold for even like liter like solid state, liquid state or gaseous states all are measured in that unit of measure. So this is all about inventory. Inventory is nothing but a combination of stock group, stock item, stock category, unit of measure. Stock item, stock category and unit of measure. Unit of measure. So unit of measure is the calculation units. So we call it as calculation units. Calculate how we are calculating. Calculations. Sir, Calculation units. Wrote about stock category. Just now we are coming for that. The main thing is that stock group, stock item, and like unit of measure. And coming to that, stock category. So stock category means first we give what is the meaning of category. Example like what is a category? What is stock category?
वेरी गुड, टाइप्स। अब ये बताइए राइस में कितने तरह के हो सकते हैं? राइस, राइस वी आर टॉकिंग अबाउट राइस। सबसे टॉप मोस्ट चावल कौन सा होता है? बासमती। बासमती। सो एक उसका टाइप है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बासमती है, सोना मसूरी है, लेकिन टॉप मोस्ट ऑफ द जैसा भी है आपको क्या बोलेंगे? बासमती चावल है। लाइक इन एवरीवेयर आपको हर के लिए आइटम आपको नेम्स वो रहते हैं कैटेगरी के लिए। सो लाइक कैटेगरी। अब ये देखिए, अब लैपटॉप्स में कुछ कैटेगरी बोलिए। इन लैपटॉप्स व्हाट आर द कैटेगरी? एग्जांपल कुछ बताइए। अब कैटेगरी बोले तो आपको ये बात समझ में आ गई। लेटेस्ट इन्वेंशंस। Touch screen laptop or normal laptop? Very good. So latest information, latest technology things, latest technology things. तो अभी क्या है? We call it as technologies. So this like screen touch laptop, ये एक example है। अब आके और क्या हो सकता You're है? not audible, sir. हाँ, स्क्रीन, बिकॉज देयर इज अ प्रॉब्लम विद, बिकॉज हालांकि आई एम पुटिंग लाइक नियर टू दैट, मैं माइक्रोफोन में बिल्कुल करीब कर रहा हूँ, लेकिन बट आई थिंक देयर इज अ अभी ठीक प्रॉब्लम है इन माय sir, अभी हेडसेट। ठीक है sir. So the screen touch laptop, and again we call देखिए speaking laptop in the sense मैं जो भी लेटर फॉर एग्जांपल इसमें टाइप कर रहा हूँ, लैपटॉप लाइक टाइप टू स्पीकिंग लैपटॉप हो सकता है कुछ भी। अब तो दैट मींस दैट स्पीकिंग लैपटॉप। एंड अगेन टॉकिंग अबाउट वॉचेस में क्या हो गया अभी राइट नाउ? वॉचेस एग्जांपल में Waterproof and हाँ, अभी आजकल वॉचेस आपको लाइक अपने बॉडी टेम्परेचर फाइंड आउट करे yeah, वॉचेस के थ्रू। numerical or हाँ, body temperature. बॉडी टेम्परेचर इसके Sports थ्रू। watches. हाँ, लाइक हाँ, वेरी गुड। स्पोर्ट वॉचेस और लाइक कॉल इट एज बॉडी एनालिटिक्स वॉचेस। अभी देखिए क्या हो गया, बिकॉज द टेक्नोलॉजी इज हेल्प्स गम इन सच ए वे दैट बॉडी टेम्परेचर मेजर्ड वॉचेस। So these are the category latest in categories it will come, latest category. So it's in gun. So और एक देखिए फॉर एग्जांपल, अब अपने को और एक में मोबाइल्स में एग्जांपल बताइए। मोबाइल्स में भी, इन मोबाइल्स Again, में touch screen or एंड्रॉयड। digital. वेरी गुड। Android, एंड्रॉइड का iOS. iOS का एग्जांपल है। अब देखिए राइट नाउ एक चीज ये इंपॉर्टेंट है अपने को मोबाइल्स में भी, उसमें भी आपको ये भी आता है, क्या बोलते हैं आपको, एक क्या बोलते हैं अपन, प्रेजेंटेशन देने के लिए क्या बोलते हैं उसको भाई, वो भी इसमें, बिकॉज ये मोबाइल इज आल्सो कमिंग। पीपीटी यूज हाँ, पीपीटी एक्सप्लेनेशन करने के लिए स्लाइड प्रोजेक्टर, Right. सॉरी आई एम गेटिंग प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर प्रोजेक्टर, so that means that अब क्या है, because we are taking the classes and all, प्रोजेक्टर भी अब मोबाइल्स में आ चुका। प्रोजेक्टर के थ्रू, जैसे फॉर एग्जांपल ऑल पीपल्स आर गैदरिंग टुगेदर, एक 100 जने बैठे हुए हैं, तो लैपटॉप के मोबाइल के थ्रू भी मैं प्रोजेक्टर एक्सप्लेन कर सकता हूँ पूरा, बिकॉज प्रेजेंटेशन ऑन दैट, सो इट्स कॉल्ड एंड्रॉइड प्रोजेक्टर मोबाइल। सो बट दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ लाइक स्टॉक कैटेगरी राइट नाउ। सो इवन आपकी और एक चीज क्या है, इसमें चार्जर्स में भी आजकल नई टेक्नोलॉजी क्या आ गई। चार्जर्स में भी आपको फॉर एग्जांपल 5-in-1 चार्जर्स, अब ले 5-in-1 चार्जर्स, 5-in-1, तो 5-in-1 चार्जर्स भी, दैट मींस दैट एट ए टाइम यू कैन चार्ज द 5 लैपटॉप्स। ये टेक्नोलॉजी आ गई, एट ए टाइम 5 चार्जर्स एट ए टाइम यू आर डूइंग। सो अगेन दिस आर टेक्नोलॉजी, सो इट्स ऑल कॉल्ड स्टॉक कैटेगरी। क्लियर? ये चीज इंपॉर्टेंट है। यूनिट ऑफ measure and again stock category and all that. Clear? तो ये this is about inventory। अब देखिए ये बात अब तो समझ में आ गई अपने को स्टॉक का मतलब, लेकिन अब सबसे पहले अपन स्टॉक कैटेगरी समझ गए, स्टॉक जो है सो स्टॉक आइटम समझ चुके, स्टॉक कैटेगरी समझ चुके, लेकिन स्टॉक का मतलब होता क्या? अगेन डेफिनेशन, व्हाट इज स्टॉक, उसके बाद ये लिखेंगे व्हाट इज ए स्टॉक। स्टॉक मीन्स व्हाट, आई विल राइट अ डेफिनेशन। अनसोल्ड गुड्स, डेफिनेशन लिख लीजिए बिकॉज अच्छा है यहाँ पर रहता, बिकॉज ये पहला डेफिनेशन। अनसोल्ड goods lying in the business concern, lying in a business concern at any given date, business concern at any given date,
फॉर एग्जाम्पल आई रेडी एम बिकॉज मैं रेडी कर चुका अपने बेचने के लिए स्टॉक lying in a business concern at any given date. That means that what means the stock? Abhi right now it is unsold, but we are making a ready. Abhi बिका नहीं, but we are making a ready to sell. Clear? Ready to sales. Ready to sale. So that's called stock. So that's called ready to sales of goods. Clear? इस वास्ते देखिए वर्ड मेंशन करा मैं लाइंग बिकॉज मैं लाइंग बोलता हूँ अगेन अगेन इंग्लिश वर्ड उसमें बिकॉज स्पेलिंग्स में से आगे पीछे हो रही so that means lying means that we are in that business in that is it is there in the pit in the business. So unsold goods right now it is unsold, but I am making a ready at this date. For example, if I want to sell, मैं लैपटॉप बेचने के लिए मैं रेडी कर चुका हूँ, मैं मार्केट आई एम रेडी, आई एम जस्ट वेटिंग टू ओपन द मार्केट सो दैट आई कैन सेल. दिस इज कॉल्ड स्टॉक. क्लियर? Stock, I am ready to sell. So right now it is unsold, but I am ready to sell for sales. That is called stock. Clear? That is a finished good. सब चीज रेडी है, बस मैं मार्केट आई जस्ट वेटिंग फॉर द मार्केट टू बी ओपन सो दैट आई कैन सेल इट. दिस कॉल्ड स्टॉक. ये हो गया. अभी देखिए ये 3 चीज समझ में आ गया माँ को. इन्वेंट्री, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, यूनिट ऑफ मेजर, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक. अभी टैली, इन टैली वी हैव 3 steps. In tally for inventory we have 3 steps in tally. Inventory in tally 3 steps. Three steps. Step number 1. Step number 1. Step number 1, unit of measure. Gateway of tally. Gateway of tally. Now it's coming at inventory info. Inventory info. अब यहाँ पर जब से we are talking about accounts info, this is the first time we are talking about inventory info. Inventory info, unit of measure, then again so how we can get an idea? देखिए, I will explain here. Before gateway of tally is coming, so inventory information it's coming. So after this stock group it should come. Stock group. First of all, stock group. Stock group, then again create and again put enter. See here, gateway of tally, unit of inventory info, stock group, then create, okay, create, then put enter. So we are getting a new screen. We are getting a new screen.
What's the screen name? एक मिनट मैं explain करूँगा. What's the screen name? Stock group creation. So we are first will see that gateway of tally, inventory info, stock group, then create. So the screen name is stock group creation. I'm writing here. So in that you have to mention as name as laptop. I'm writing in the like bracket laptop. That means here type means it's a keyboard work. Then put enter. Then again what you are getting as that screen you have to write it. Then comments at under. Again you go for the primary. Again primary you have to go just for the bracket. I'm writing here in the bracket. So I'm writing here just because I'm writing here. Please do not change. I'm writing in this here. I'm writing just beside that. Do not change anything. So not required. I'm just writing not required. Not required in the sense that you should not change anything else. Not required. Not required in the sense we are not changing anything else. So sorry. Type here. We have that's called laptop. We have to type here. Laptop. I'm writing here laptop again here. Type. That means type here. Primary. Not required. I'm not changing anything else. Not required. So again the quantity items we added. So I'm writing here. Okay, exact screen we are writing. Can quantities of items be added? Items be added. So again, what we are writing? No, not required. Again, we have to write not required. Not required. Okay. So then again, what we have to do that put enter. Okay. I'm writing here no not required. Enter. Put enter and save. So again, write in put enter and save. Okay. Then coming to step number 2. Step number 2 is creation of. Step number 2 is like creation of stock group. Creation of stock item. Oh, sorry. Unit of measure लिखा है यहाँ पर मैं sorry. अच्छा ठीक है. इसका second step आ गया. ठीक है. Put enter and create. So just change this sorry because the step my unit creation आने का है. Unit creation just change that one. Unit creation लिखने का था. मैं यहाँ पर ये stock group में आ गया. So go for unit of first of all unit of measure में जाएंगे अपन. Then create. So unit of measure just like so unit creation and just you type here as like for example numbers NOS. Okay. So type Not type audible, here. sir. One minute. There is a problem with this handset, so I will just do one thing tomorrow. Like this handset should be perfectly because I'm putting my efforts, but still it's not working. So please manage that one. So here, unit creation. Then again, symbol you have to write here. So from where we'll get the unit creation screen? See here, gateway of tally, inventory info. Sorry, it's not a stock group. Actually, unit of measure because 1 minute. Because this handset is creating problem for me.
unit of measure. See here 1 minute. Gateway of Tally, this is the first one. Then coming to inventory. Gateway of Tally, inventory info. Gateway of Tally, inventory info. Then just put enter, and again unit of measure. So again unit of measure, you have to select unit of measure. Then again create. Again you have to put enter, create, and again you have to select create. Then again create. Then again you have to put enter. Again putting enter. So again I'm writing here. We are getting and using a unit creation, and we have to select type. So here type. Type you have to select as simple. Simple means again no not required. So I'm writing in the simple in the bracket. So I'm writing here not required to change anything else. So type, and again symbol. Symbol you have to write. Symbol you have to write as NOS. Again you have to write in the bracket NOS. Then again call it as type. So that means as a keyboard work we have to do. So I'm writing here NOS short form. So NOS as a short form. NOS as a short form. Then coming to that, formal name I'm writing. Numbers. 1 minute. Formal name you have to write a full form, numbers. So again you have to write NUMBRS numbers. Okay, in the bracket. Again just write for the type. Again then number of decimal places, 0 not required. Decimal places not required, so we should not change in that. So not required, we can use afterwards, but right now it's not required. So no, not required. Okay, then put enter and save. Put enter and save. So actually this is a step number 1. Okay, unit of measure. Coming to that, step number 2. Step number 2 is like creation of stock group. Creation of stock group. Stock group. So this is again we go for backs. Again we'll see that again you have to type numbers. Again this is not required. Creation of Again stock groups again in no, the 1 minute. same Same screen only. So this gets completed. For example, again what we had created, again we'll see the display, because we have the 3 option. Create for new one, display will check it. Acha, we can see that in the display numbers. Or again, for example, if you want to change it, we go for the alter. Again, if you want to change, like again you can change it, because we already studied that 3 option. Create for new one. If you want still again want to create multiples also, create, display and alter. Okay. Then coming to again step number 2, creation of stock group. So again same screen, gateway of Tally. So gateway of Tally. Then again inventory info. Then again inventory info, and put enter. Showing Then again, duplicate entry, sir. which one, ma'am? It's showing duplicate entry. The thing is that why? Because we already created now 2 times we had explained that one. So that means they are asking for already had created. Why? Because gateway of Tally, unit of measure. So create, because we already created that. So they are asking 2 times. Duplicate entry 2 times we are creating. They are giving a message. Because देखिए handset का problem है, main चीज क्या है, मैं already because I am putting an effort से handset का I think I will adjust tomorrow a new handset
but still I'm putting an effort. Already I'm putting it close to my mouth, but still it's like what problem I don't know. Sir, we are getting clear voice, sir. Acha. Me too also getting clear voice. I think it's better. आ रहा ना हमारा clear voice? We are getting clear voice. हाँ ठीक है. Again like we got an idea. समझ में आ रहा है because देखिए आप लोगों को you are getting a voice. चलिए देखिए again step number 2 gateway of tally inventory info then again inventory info escape हाँ इसके बाद देखिए सॉरी यूनिट ऑफ मेजर नहीं आएगा यहाँ पर क्या आएगा इट शुड कम एज स्टॉक ग्रुप आएगा सेकेंड स्टेप स्टॉक ग्रुप ठीक है स्टॉक ग्रुप गेटवे ऑफ टैली हो गया again inventory info हो गया again put enter then again we go for the stock group is here stock book is here you have to select a stock group again put enter then again a create we have to go for create stock group हो गया then we have to go for create तो ऑलरेडी हम क्या करें एक बना लिए थे शायद विल सी द डिस्प्ले इन दैट यस वी ऑलरेडी क्रिएटेड द लैपटॉप तो इसको क्या करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल अपन जस्ट इसको डिलीट कर देंगे बिकॉज so again gateway of tally inventory info then stock group then create so gateway of tally inventory तो info लैपटॉप बना दिए थे ना सर? हाँ नहीं वो मैं वो बिकॉज क्या हो गया था मैं फर्स्ट स्टेप उसमें वो किया था मैं फिर से बना रहा हूँ गेटवे ऑफ टैली नहीं जस्ट सी हियर ऑन गेटवे ऑफ टैली 1 मिनट गेटवे ऑफ टैली इन्वेंटरी इन्फो ठीक है देन स्टॉक ग्रुप इज हियर then again stock group then create then again create then put enter after create again put enter and we are getting a screen as stock group creation. What is the screen name here? Stock group creation. Again we'll check down gateway of tally inventory info stock group creation downward stock group creation upward stock group creation we have to stay stock group creation. So screen name what we are writing as stock group creation screen. In that first of all name is mentioning so we have to write the name. So name we have to write लैपटॉप. सबसे पहले name you have to give as laptop you have to type as laptop again we have to write in the bracket and give left laptop again you have to put in a bracket and this type सेंटर. type means what it's a keyboard work then again we write as laptop again because again we go for type and again you have to give under there is not required again you are writing a why because हम इससे पहले second step direct कर लिए थे इस वास्ते problem हुआ था so again we are doing a step then again primary then again we say not required again that not required again can items places number of decimals places no can the quantities of an item we have to write here can quantities of items be added so the not required we can write as not required then we go for put enter and save then we have not required again you put enter and save
Again, for example, what we had created, we have to check in the display. Gateway of Tally, then we go for the display. We had created one laptop. Okay, laptop as a primary. Then coming to the third step, step number 3, that is called creation Creation of of unit. creation of stock item. Nice, creation of stock item. Why? Because unit creation of unit we had created. Unit of measure STS we had created as numbers, NOS numbers. So step number 3, then it's called creation of stock item. So creation of stock item. Creation of stock item. Again, same step. Gateway of Tally, then inventory info, then it's come as stock item. It will come stock item. So again, we'll go for the back, escape key, escape key, escape key, then gateway of Tally, inventory info, again put enter, then again stock item, stock item, stock items you have to select, then again create, again you have to create, put enter, then we are getting a screen as, which screen this is one? Stock item creation. This screen it's what? Stock item creation. I'm writing as like stock item creation. Stock item creation, in that name is mentioning. So in the name, but I have to mention which this is called what? Stock, this is stock group. यहाँ पर sorry, stock item मैं लिखूंगा यहाँ पर. It's a stock item screen. Stock item. So in that, what I have to mention? I have to mention here first of all, what is the stock item means? Brand names of laptop. What is the brand names of laptop? आप स्टॉक ग्रुप का किए थे ना नहीं अभी? नहीं, स्टॉक ग्रुप हो गया. अभी ये तीसरा कर रहे हैं अपन, स्टॉक आइटम कर रहे हैं अभी राइट नाउ. स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप हम लैपटॉप दे चुके. अभी राइट नाउ व्हाट वी आर डूइंग, स्टॉक आइटम. स्टॉक आइटम कर रहे हैं अपन, जिसमें गेटवे ऑफ टैली है, इन्वेंटरी इन्फो है, स्टॉक आइटम है, क्रिएट है. ये स्क्रीन करने के बाद आपको ये स्क्रीन आया. अगेन विल गो फॉर गेटवे ऑफ टैली, इन्वेंटरी सॉरी इन्वेंटरी इन्फो, देन क्रिएट स्टॉक आइटम्स. स्टॉक आइटम के बाद फिर अपन क्रिएट बोले. तो यहाँ पर आप क्या करें, सैमसंग लैपटॉप, सैमसंग लैपटॉप वी गो फॉर इट. तो यहाँ पर सैमसंग लैपटॉप टाइप करना है. तो दैट मीन्स दैट सैमसंग लैपटॉप. देखिए इवन आई एम राइटिंग सैमसंग लैपटॉप टाइप हियर, ये टाइप कर चुका. उसके बाद आपको अंडर प्राइमरी, प्राइमरी नो वी हैव टू सेलेक्ट लैपटॉप. सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर ऑलरेडी हम क्या करे थे, ये लैपटॉप बना चुके थे. तो यहाँ पर चेक करना, if the primary screen will come under, you have to select the laptop. Just now we have created laptop. Step 2 में ऑलरेडी जो बनाए थे अपन लैपटॉप, उसमें से वो पिक करेंगे अपन. तो मैं यहाँ क्या करूँगा, ये देखिए यहाँ देखिए, the most important thing laptop we have created. We have to select a laptop. इसमें प्राइमरी सेलेक्ट नहीं करेंगे, you have to select a laptop. यहाँ पर लैपटॉप सेलेक्ट करेंगे. तो इसमें मैं यहाँ लिख दूंगा अंडर, you have to select primary not a primary. यहाँ पर आप लैपटॉप सेट करेंगे, लैपटॉप, लैपटॉप अगेन. So I am writing here select. I am writing here select, select laptop, laptop. In that select laptop option I am writing. Clear? यहाँ पर लैपटॉप सेलेक्ट करना है. उसके बाद फिर आप यहाँ पर क्या करना है, नीचे आपको यूनिट्स आएगा. यूनिट्स इसमें अपन ऑलरेडी क्या लेंगे, यहाँ पर अपन ऑलरेडी नंबर्स लिए थे, नंबर्स. सो यू हैव टू सेलेक्ट नंबर्स. यहाँ पर नंबर्स लेंगे आप. so that means that again you have to select numbers. So I'm writing a numbers NOS, then again I'm writing select numbers option, select numbers option. Then I'm writing here, we are not doing any changes in that, just we're writing put enter and save. क्या बोलेंगे अपन, put enter and save. We are not using this one, we use in afterwards जब GST करने के टाइम पे एक एक चीज. बट ये ओनली 3 स्टेप्स करने के बाद सिर्फ बोलेंगे अपन पुट एंटर एंड सेव. तो ये सिर्फ खाली सैमसंग का बना है ये. उसके बाद आप एटलीस्ट 4 आइटम्स बनाएंगे अपन ऐसे, 4 आइटम्स. क्लियर? बिकॉज आई एम राइटिंग यहाँ पर मैं दूंगा दिस इज फर्स्ट बोल के, दिस इज फर्स्ट. तो अगेन आई एम राइटिंग, मैं नीचे लिखूंगा. और एक एग्जाम्पल भी ले सैमसंग, उसका एग्जाम्पल LG, सैमसंग तो ऑलरेडी बनाया अपन. और एक अनदर नेम LG लैपटॉप दे देंगे, LG लैपटॉप. एक और एक बना लेंगे, गो फॉर LG लैपटॉप.
सेकेंड मैं दूंगा, सेकेंड आई एम गिविंग लाइक LG लैपटॉप सेम स्क्रीन, बस इसमें LG लैपटॉप ऐड कर दूंगा. So I'm just writing here LG laptop, everything will be same. LG laptop, लैपटॉप सेलेक्ट करने के बाद what I have to select here, यहाँ से क्या सेलेक्ट करूंगा मैं, I'm selecting a laptop, I'm selecting a laptop because be carefully, because you have to select carefully. अगर आप प्राइमरी आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको सेल्स जब एंट्री पास करेंगे, परचेज एंट्री पास करेंगे तो आपको सिर्फ प्राइमरी बताएगा, लैपटॉप की इंफॉर्मेशन नहीं देता. You have to select laptop compulsory. Then again you have to select numbers. You have to select a numbers. यहाँ पर numbers compulsory, you have to select it. So I'm selecting a numbers. Then put enter and save. So in quantity, we are not writing anything, sir. No, this is not required. This is not required. Okay. Then we will use afterwards. बाद में अपन देखेंगे. Because in GST के टाइम पे एक एक चीज एक्सप्लेनेशन करना है, but right now उसकी अभी जरूरत नहीं है अपने. So again coming to the third one, अभी लैपटॉप LG बना लिए अपन. We going for the new. उस LG के बाद दूसरा और एक लैपटॉप बनाएंगे अपन. LG के बाद देखिए डेल लैपटॉप, मैं और एक ले देता हूँ. डेल लैपटॉप और एक क्रिएट करेंगे अपन. डेल लैपटॉप, डेल लैपटॉप. Again I am taking Dell laptop, type as a Dell laptop. After that what you have to select, we have to select laptops. इसमें laptop select करना है अपने को, because compulsory you have to select a laptop. And again we go for the items, numbers you have to select, again numbers in that, numbers mention करा, numbers you have to select, again put enter and save. खाली इतनी information. अगर और एक create कर लेंगे because the Toshiba और एक laptop की information ले लेंगे, we go for the again another laptop, because at least 4 items you have to create for the practice, because as how many items if you create, you will get an experience in that. So again I'm writing here Toshiba laptop, Toshiba laptop. I'm writing here Toshiba laptop, writing Toshiba. Then again laptop you have to select. Here laptop compulsory, and again here number should be compulsory. Okay, correct. Then again put enter and save. So we had created how many? 4 items, 4 stock item created. अभी आज ये देखिए अपन ऑलरेडी परचेस सेंस सेल्स तो एंट्री अपन ये करे. सो अब अपने को एक इंफॉर्मेशन अभी क्लियर हुई कि भाई आइटम्स खाली लैपटॉप बोले तो आपको सिर्फ एक इंफॉर्मेशन रहती, लेकिन विच लैपटॉप्स यू गेट स्पेसिफिकेशन दैट मींस एन आइटम. सैमसंग लैपटॉप, सोनी है, LG है, आपको लाइक तोशिबा है. अब क्या करने का है अपने को, ये जो परचेस की एंट्री जो है, अभी परचेस की एक एंट्री अपने को करने का है. कौन सी एंट्री है? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस परचेस. ये एंट्री आपको है परचेस अकाउंट डेटा. इसकी एंट्री क्या आ रही भाई? See here these transactions. Purchase a laptop rupees 35,000 for cash. This entry we have to do in the tally. अभी अपने को टैली में एंट्री करना है. तो ऑलरेडी हम क्या बोले, परचेज अ लैपटॉप, सो परचेज अकाउंट डेटा टू कैश अकाउंट. इफ दिस परचेज इज मेंशन, तो अपने को परचेज का वोचर अब देखना है. अब मैं क्या करूंगा, देखिए आपको एक प्रॉब्लम दे देता हूं. एक प्रॉब्लम दिए तो अपने को क्लियर इंफॉर्मेशन आती. परचेज कितने लैपटॉप है, आई एम जस्ट गिविंग वन प्रॉब्लम. Hello. हाँ, आई एम गिविंग अ प्रॉब्लम. Yes, sir. अभी देखिए, अब ये तो खाली अपने को खाली इंफॉर्मेशन हम करें. अब ये इंफॉर्मेशन टैली में किस तरीके से करना है, लेकिन बट दिस इज वेरी सिंपल. 3 स्टेप्स तो अपने को ऑलरेडी करने का है. 3 स्टेप्स वी हैव टू डू इन इन्वेंट्री. वी हैविंग 3 स्टेप्स. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. अब मैं एम गिविंग वन प्रॉब्लम, सो द सेम प्रॉब्लम यू हैव टू डू, आपको करने का, बिकॉज परचेज एंड सेल आई विल एक्सप्लेन. सो आई एम जस्ट कॉपिंग द प्रॉब्लम. आप लोग ये करिए, फिर उसके बाद आई एम गिव सम टाइम, फिर उसके बाद विल गो फॉर द परचेज एंड सेल. परचेज एंड सेल देखेंगे. मैम जी वन प्रॉब्लम, मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करता हूँ आपको प्रॉब्लम, सो दैट आपको एक सही इंफॉर्मेशन आ जाती है. ये देखिए, सो दिस प्रॉब्लम. Hello. हाँ, 1 minute मैम, बिकॉज आई एम गिविंग अ प्रॉब्लम. आई एम दिस. सी डू द प्रॉब्लम. ये प्रॉब्लम करिए.
व्हाट इज प्रॉब्लम नंबर 4 है पता नहीं, 5 जैसा भी है। प्लीज डू दिस प्रॉब्लम एक बार ये इसको कॉपी करिए, सो दैट अभी मैं आई विल एक्सप्लेन आफ्टर 10-15 मिनट्स Hello. अबाउट दिस वन। हाँ, टेल मी मैम। Please, first of all, we'll do this problem. Only we had explained. This is explanation. खाली explanation हुआ. So this explanation how we can do in Tally, we have to explain after this problem. We are doing this problem for sales and purchase. Clear? Okay, sir. ये प्रॉब्लम बिकॉज हम तो खाली अभी इंफॉर्मेशन करें, अभी ये इंफॉर्मेशन ये प्रॉब्लम इंप्लीमेंट करके अपन उसको करेंगे, जिसमें से वी आर गिविंग 4 इंफॉर्मेशन, 4 आइटम्स देंगे, परचेस के 4 देंगे एंड सेल्स लाइक परचेस 4 एंड सेल्स 4। हाउ परचेस एंड सेल आई विल एक्सप्लेन, लेकिन आप यहाँ तक जो पेमेंट के एंट्रीज आप कर ले सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन फ्रॉम द परचेस। ओके, आप ये कॉपी करिए प्रॉब्लम, बिकॉज विल सी जस्ट नाउ विल स्टार्ट द प्रॉब्लम। So like cash deposited, started a business with a cash rupees 19,50,000 by Hermit Computers and Hello? cash deposit into Hello. हाँ बोलिए मैम, अभी प्लीज Hello? डूइंग दिस। हाँ बोलिए, आ रही है आवाज आपको मेरी? सर बहुत ज्यादा ब्रेक हो जा रही है आपकी आवाज। अच्छा ठीक है मैम, बिकॉज देख दूसरों को आ रही बोल के बोल रहे थे हम, दूसरों को आ रही है आवाज मेरी? एक हाँ बार सर, हमको तो क्लियर आ रही। हाँ सबको क्लियर आ रही बोल के बोल रहे हैं मैम, बिकॉज आपको, बिकॉज मैं भी वही बोल रहा हूँ, बिकॉज आई एम लाइक नियर टू द माय हेड माइक्रोफोन ओनली, जब से मैं अपने माइक्रोफोन को बिकॉज क्लियर हूँ। सो प्लीज आप भी एक बार वो चेक कर लीजिए मैम, आपका भी हेडफोन, बिकॉज आप उसमें आप माइक्रोफोन भी आप ही चेक कर लीजिए। सो कैश डिपॉजिट इनटू आईसीआईसी बैंक 3,50,000, परचेस मशीनरी फॉर कैश, परचेस मशीनरी फॉर कैश rupees, make it as 55, make it as 55, purchase furniture through HDFC bank, no it's ICICI bank, ICICI bank, change as ICICI bank, ICICI bank, ICICI bank, जिसमें से आप make it as 43,000, 43,000, okay, और एक एंट्री मोटर बाइक, make it as motorbike as 60,000, okay, but from this 6th entry we will changing that one, 5th entry से मैं change कर देता हूँ, जिसमें से I will add purchase and sale, purchase के 4 entries, sales के 4 entries add करूँगा, but how will do I will explain, don't worry about that. I am writing here purchase 10, purchase 10, which first one is which laptop? First one is which laptop? Samsung laptop. पहला लैपटॉप कौन सा बनाया अपन ऑलरेडी, जस्ट नाउ वी हैड मेंशन इट, फर्स्ट वाला सैमसंग बनाया, सैमसंग लैपटॉप। सो परचेज 10 सैमसंग लैपटॉप एट द रेट ऑफ 25,000 each for cash. Clear? This entry. Second entry, second purchase entry, purchase 10 after Samsung LG laptop at the rate of 26,000 each. One laptop is 25,000, 10 laptop means 10 into 25,000, likewise 2,50,000. So one laptop rate is 25,000, 10 laptops we have to multiply with 10, 26,000 each, you have to multiply with the 10 into 26, 2,60,000. I'm writing each for cash. Up to 5th entry you can do it, आप 5th entry तक कर सकते हैं, 6th entry, from 6th entry I will explain.
again purchase 10 after LG, which laptop? LG के बाद कौन सा है? Dell laptop at the rate of 27,000 each for cash. Then again 11th entry, 10th entry, 9th और एक एक दो कितने परचेज है? डेल है, लास्ट परचेज है बिकॉज 4 परचेज एंट्री एंड 4 सेल्स एंट्री. परचेज 10 Toshiba laptop at the rate of 28,000 each for cash. क्लियर, समझ में आ रहा अभी आप लोगों को? हाँ माँ, Yes. ओनली डू, हाँ ये आप करिए बिकॉज अभी आई एम एक्सप्लेनिंग. अभी देखिए परचेज तो मैं लिख रहा हूँ, अगेन आई एम राइटिंग ए सेल्स. अभी आई एम एक्सप्लेनिंग फ्रॉम 6th एंट्री, इसको मैं कॉपी करता हूँ. अगेन आई विल गो फॉर द पेस्ट फॉर सेल्स. ट्रांजैक्शंस 10 आई एम राइटिंग इट एज सोल्ड. अभी देखिए क्या करेंगे अपन, 10 परचेस करे थे, अब आई एम सोल्ड 7. 10 परचेस करे, 7 सैमसंग सोल्ड करे, और सेल्स रेट भी आपका जो है सो वी हैव मोर सेल्स रेट. सेल्स रेट बढ़ के रहेगा. 25,000 रुपए से खरीदे, मैं इसको 30,000 में सेल करूंगा. डोंट वरी, आई एम एक्सप्लेनिंग ओनली जस्ट वी आर राइटिंग द प्रॉब्लम. उसके बाद देखिए अगेन मैं सोल्ड कर रहा हूँ. वी सोल्ड 7 लैपटॉप्स. अगेन सोल्ड 7 सैमसंग के बाद क्या है? LG लैपटॉप, ओके, एट द रेट ऑफ 31,000 कर दूंगा. 31,000 ईच फॉर कैश. उसके बाद देखिए सोल्ड 7 डेल के बाद, अच्छा डेल तो हो गया समझ. नंबर्स चेंज कर दीजिए सर. 11 हाँ 12. हाँ बिल्कुल डेल, हाँ इसमें एट द रेट ऑफ 32,000 ईच फॉर कैश. अब लास्ट और एक सेल है, उसको भी बिकॉज विल चेंज दैट वन. सोर्स सोल्ड 7 Toshiba laptops at the rate of, इसको make it as 33,000. अब देखिए कितने एंट्रीज हो गए हैं यहाँ पर से 11. कमीशन रिसीव विल सेम एज इट इज. कमीशन रिसीव तो इनकम तो ऑलवेज बढ़ के रहना है, बिकॉज इनकम रही तो विल गेट आफ्टर सम टाइम. आगे देखेंगे अपन प्रॉफिट आ रहा क्या है, बट राइट नाउ वी रिक्वायर्ड. इसमें से इंटरेस्ट रिसीव, ये क्या करिए, एक सैलरी पेड फॉर कैश, सैलरी पेड फॉर कैश. चलिए आप लोग जल्दी करते जाइए प्रॉब्लम में. आई विल एक्सप्लेन, आई विल जस्ट गिव सम टाइम, एक 10 मिनट 10-15 मिनट अपन विल वर्कआउट. उसके बाद आई विल एक्सप्लेन ये परचेस. एज इट इज रहेंगे सर. आगे के कमीशन रिसीव्ड एंड ऑल एज इट इज रहेंगे. हाँ नहीं मैं, हाँ इसमें बैंक चेंज कर दूंगा मैं. कमीशन रिसीव यहाँ पर देखिए HDFC बैंक, हाँ वो एज इट इज रख देंगे अपन. बैंक ICICI बैंक है, देखिए ICICI बैंक, इसको मेक इट एस 99 कर देंगे आप. मेक इट एस 99, इसको मेक इट एस 83. उसके बाद देखिए रेंट पेड 15,500 फॉर HDFC बैंक में ICICI बैंक. सैलरी पेड मेक इट एस 19.
then electricity bill, make it as 13,575. कुछ तो भी changes amount, then again we'll get an idea. Practice में आपको आसान होगी. Like 13,575 electricity bill. 3,50,000 अब इसमें 35,000 का है. वो पर 35,000. 35 HDFC बैंक नहीं, it's gone for ICICI बैंक. So अपने को ये करना है, देखिए सेम एज इट इज है. देखिए एवरीथिंग मैं यहाँ आई विल एक्सप्लेन फ्रॉम परचेज. सिक्स्थ एंट्री से अपन क्या कर सकते हैं, ये जो ट्रांजैक्शन करे अपन, सेम एग्जांपल हम ऑलरेडी क्या करें, परचेज फॉर कैश. फर्स्ट क्या कैश परचेज का जो एंट्री करे थे अपन, कैश परचेज के लिए सेम एंट्री इस तरीके से चाहेंगी. परचेज अकाउंट डाटा टू कैश हैगा, सेम परचेज अकाउंट डाटा टू कैश. लेकिन बट यू हैव टू मल्टीप्लाई 10 इंटू कितना है, देखिए 25,000, 2,50,000. तो ये एंट्री परचेज अकाउंट डाटा टू कैश ही चाहिए. पूरे एंट्री आई एम गिविंग फॉर कैश, डोंट वरी, ये सिर्फ कैश से ही चाहिए. देखिए दिस एंट्री जर्नल एंट्री जो आएगा आपको 7th का, सेम परचेज अकाउंट डाटा टू कैश अकाउंट. डिस्क्रिप्शन में यू हैव टू मेंशन 10 सैमसंग लैपटॉप एट द रेट ऑफ 25. बोल तो 10 इंटू 25 कितना हो गया भाई, 2,50,000 हुआ. क्लियर? 10 into 25, 2,50,000. सेम एंट्री विल दिस सेम एंट्री. देखिए ऑलरेडी जो अपन करें ये एंट्री परचेज अकाउंट डाटा, जैसे कि कैश परचेज की एंट्री जो करें अपन, कैश परचेज एंट्री, सेम एंट्री परचेज अकाउंट डाटा टू कैश, 2,25 into 2,50,000. यहाँ पर भी 2,50,000. डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर मेंशन करेंगे आप 10 सैमसंग लैपटॉप एट द रेट ऑफ 25,000. यहाँ पर जो आंसर लिखेंगे आप 2,50,000 आएगा. सेम एंट्री 2,50,000 डेबिट में, 2,50,000 क्रेडिट में. फिर अगेन एंट्री नंबर 7. एंट्री नंबर 7 क्या है, 10 LG लैपटॉप्स है, तो 10 एट द रेट ऑफ 26, 2,60,000. अगेन यहाँ पर 2,60,000 डेबिट में परचेज आएगा, क्रेडिट में कैश आएगा. लेकिन डिस्क्रिप्शन में डिटेल लिखेंगे आप 10 LG लैपटॉप, पूरा डिस्क्रिप्शन में जो भी डिस्क्रिप्शन है पूरा लिखेंगे 10 LG लैपटॉप एट द रेट ऑफ 26,000. फिर उसके बाद की एंट्री 10 आपको जो है सो सेम मैनुअल एंट्री तो सेम रहेंगी, लेकिन सिस्टम आई विल एक्सप्लेन. सो अगेन थर्ड उसके बाद की एंट्री 10 क्या है, LG डेल लैपटॉप है एट द रेट ऑफ 28,000. 10 इंटू 28 कितना होता है, 2,80,000. डेबिट में 2,80,000 लिखेंगे, क्रेडिट में 2,80,000 लिखेंगे. सेम एंट्री एज इट इज परचेज अकाउंट डाटा टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डाटा टू कैश अकाउंट. अगेन उसके बाद फोर्थ परचेज की एंट्री 10 एट द रेट ऑफ कितना है वो, 29,000. 29,000 है शायद, 10 एट द रेट ऑफ 29,000. ये देखिए यहाँ पर 10 एट द रेट ऑफ 28,000 जो भी है परचेज 28 से है, 25, 26, 27. तो जो भी आप मल्टीप्लाई करें लास्ट तोशिबा की 2,80,000, 228 into 10, 2,80,000. So 2,80,000. यहाँ पर भी 2,80,000, यहाँ पर भी 2,80,000. सो ये पूरे एंट्रीज परचेज के एज इट इज रहेंगे. डिस्क्रिप्शन में आप उस तरीके से लिखेंगे. और उसी तरह सेल्स में भी एज इट इज कैश सेल्स, कैश अकाउंट डाटा टू सेल्स. ये देखिए कैश सेल की एंट्री, कैश सेल्स सेम कैश अकाउंट डाटा टू सेल्स अकाउंट. ये एक लैपटॉप की इंफॉर्मेशन 40,000 अपन एग्जांपल लिए, बट सेम उसी तरह का लिख सकते हैं आप. कैश अकाउंट डाटा टू सेल्स अकाउंट आएगा, लेकिन बट यू हैव टू मल्टीप्लाई. आप 7 इंटू ये मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 30, 7 3 21. 21 बोले तो कितना होगा, 2,10,000 रुपए. सो 2,10,000 अगेन 2,10,000. सेम एंट्री कैश अकाउंट डाटा टू सेल्स अकाउंट 2,10,000. यहाँ पर 2,10,000, यहाँ पर 2,10,000. डिस्क्रिप्शन में पूरा लिखेंगे बीइंग 7 सैमसंग लैपटॉप सेल, जो भी उसका रेट है 30,000. डिस्क्रिप्शन में मेंशन करेंगे पूरा. क्लियर? सो अगेन दिस वन LG same 7 LG 7 at the rate of 31,000. 7 1 is 7, 7 3 is 21, 2,17,000. Same as it is cash account data to sales account.
1 लाख जो भी आप 2,27,000 जो भी आंसर आ रहा, मल्टीप्लाई करके डेबिट में वो लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। डिस्क्रिप्शन में आप जो है सो सेम वो मेंशन करेंगे। क्लियर? और देखिए अगेन सेल्स अकाउंट सेम एज इट इज। तो देखिए मैं समझता हूँ आज अपन ये कर तो बस है इनफ। आप ये प्रॉब्लम आज घर पे बैठ के अच्छा कर लीजिए। क्यों? बिकॉज इसको समझने के लिए अपने को थोड़ा टाइम लगेगा। टुमारो विल कंप्लीट परचेज सेल्स। अच्छा समझ में आया था अपने को कल। क्लियर? ये एंट्रीज जो है आप आज बैठ के अपन कर लेंगे। वाई? बिकॉज अपन को कुछ करे तक थोड़ा टाइम हो जाता, और कल जब आते ही क्विकली आप ये एंट्रीज कर ले सकते हैं। क्लियर? क्यों बोले तो मेन चीज देखिए, ये जो इन्वेंट्री के तो 3 स्टेप्स है ऑटोमेटिक आपको टैली में आ जाते। तो अपना मेन काम ये समझना है, मैनुअल समझना मेन काम है अपना। तो इन्वेंट्री स्टेप्स तो ऑलरेडी मैं ये लिखा चुका, डायरेक्ट आते अपन को थोड़ी देर में ये हो जाता। मेन चीज है। क्लियर? Yes, sir, clear. Sir, once you explain how to delete the entry, हाँ बिल्कुल। आज अपन थोड़ा हाँ शॉर्टकट देखेंगे इसका डिलीट। अपन जो है सो क्या बोलते सो एक सवाल ये आता, एंट्री भी डिलीट कर सकते हैं। ठीक है अपन अब इसमें वॉचर डिलीट कर सकते हैं। ठीक है अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब एक सवाल ये करता हूँ बिकॉज ऑफ डिलीटिंग एंट्री अपन कॉन्सेप्ट सीख रहे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं डिस्प्ले में आया, डे बुक में आया, डिस्प्ले में डे बुक है। अब मेरा सवाल ये है, ये मशीनरी की एक मेरा अच्छा सवाल सुनिए। मशीनरी का जो अकाउंट है एंट्री वोचर अलग है, आपको लेडजर अलग है। क्लियर? अब देखिए अपन मशीनरी सेलेक्ट कर रहा हूं, आई एम पुटिंग एंटर। मेरा सवाल ये है, मशीनरी को क्या लेडजर को मैं डिलीट कर सकता हूं? एक पहला सवाल। लेडजर यानी कि मशीनरी का लेडजर में खाली लेडजर डिलीट करना चाह रहा हूं। आई एम नॉट डिलीटिंग ए वाउचर। ये वाउचर है, ये क्या है? पेमेंट वाउचर नंबर 1, ये मशीनरी का है। इसको डिलीट करने से पहले मेरा सवाल ये है, क्या मैं मशीनरी को डिलीट कर सकता हूं? क्या मशीनरी क्या एक लेडजर है? व्हाट एन आइडिया? माय क्वेश्चन इज दैट before I want because my question is that before deleting this voucher, can I delete a voucher? Can I delete a ledger? Ledger is different, voucher is different. What is the difference between ledger and voucher? This is the voucher. After ledger creation only we create the payment voucher. Very good. My question is that I want to delete a machinery. I want to delete a machinery. I want to delete a ledger. How can I delete a machinery ledger? For example, if I want to delete a ledger, how can we delete the ledger? Gateway of Tally, accounts info, ledger, and again in the alter, because in the alter option only we can delete it. In the display we cannot delete. We go for alter option, we'll select the machinery. Machinery is here. I want to delete this entry. Delete is button is here. यहाँ पर आप देखिए इट्स शोइंग इनएक्टिव, कि इनएक्टिव शो कर रहा है। ठीक है अब देखिए मैं इसका शॉर्टकट की लिखाता हूं। मेन चीज हमको 2 चीज सीखना है। एक है ऑल्ट 1 डैश, ये एक ही डैश है। 1 डैश मीन्स DASH डैश, 1 डैश मीन्स ऑल्ट ALT ऑल्ट। एक डैश का मतलब क्या होगा? ऑल्ट। अगर 2 डैशेस रहे एक के नीचे यानी कि 2 डैश रहे, देखिए ऊपर एक डैश है उसको ऑल्ट बोलेंगे, 2 डैशेस को क्या बोलेंगे अपन? 2 डैशेस को बोलेंगे कंट्रोल। क्लियर? कंट्रोल। अब मैं एक डैश रहा तो ऑल्ट, 2 डैश मीन्स कंट्रोल। क्लियर? अब हम इससे पहले क्या करे थे, ऑल्ट सी बोल के एक शॉर्टकट सीखे। ऑल्ट प्लस सी क्या के लिए है? परसों पढ़े अपन ऑल्ट प्लस सी। ऑल्ट प्लस सी क्या करे? नया लेडजर बनाने के लिए है। क्लियर? यानी कि एक डैश, देखिए ऑल्ट मीन्स सिंपल, एक बात समझ रही है, ऑल्ट मीन्स 1 डैश, कंट्रोल मीन्स 2 डैश। क्लियर?
ऑल्ट डी मीन्स लाइक, अब देखिए डिलीट के लिए शॉर्टकट की बटन है DELETE डिलीट, इसके लिए शॉर्टकट बटन है ऑल्ट प्लस डी, ऑल्ट प्लस डी, ऑल्ट प्लस डी। ऑल्ट यानी कि, ऑल्ट यानी कि एक डैश बोले, ये देखिए अभी अपन क्या बोले, एक वन डैश मीन्स ऑल्ट, और डिलीट के लिए आपको डी बटन आता डी। तो मैं यहाँ ये एक्सप्लेन कर दूंगा, इसको मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ, क्यों, समझने के लिए। अब यहाँ पर आपको देखिए डी मेंशन है, एक ही डैश है, ओनली वन डैश, सो दैट मीन्स हम बोले एक डैश रहा तो ऑल्ट होगा वो, क्लियर, एक डैश रहा तो ऑल्ट, वन डैश मीन्स ऑल्ट। देखिए डी के नीचे एक बटन है, डी के नीचे एक डैश है, दैट मीन्स ऑल्ट डी। अगर दो डैश रहे तो कंट्रोल बोलेंगे, देखिए यहाँ पर कंट्रोल क्यू, हम ऑलरेडी पढ़े थे, टैली बंद करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल क्यू। कंट्रोल क्यू। कैसा कंट्रोल, टू डैशेस है, क्यू के नीचे टू डैशेस है, दैट मीन्स कंट्रोल, कंट्रोल प्लस क्यू, वो दबाने से आपको पूरा टैली बंद हो जाता। अब यहाँ पर ए के नीचे दो डैश है, टू डैश मीन्स व्हाट, कंट्रोल, टू डैशेस मीन्स व्हाट, कंट्रोल यूज करना है। लेकिन खाली आपको एक डैश आता, दैट मीन्स ऑल्ट, ऑल्ट मीन्स वन डैश, समझ गए माँ, हाँ ऑल्ट yes, मीन्स वन डैश। तो मैं यहाँ पर और एक भी लिखूंगा, डी, डी बिसाइड वन डैश, डी के नीचे एक डैश रहा तो उसको क्या बोलेंगे अपन, ऑल्ट डी, यानी कि वन डैश, इसके नीचे एक डैश, तो अपन इसको कैसा कर सकते हैं, इसके नीचे एक डैश आप डाल दे सकते हैं, जैसा वन डैश यार इसमें, हाँ, यानी कि डी वन डैश, दैट मीन्स ऑल्ट डी। देखिए यहाँ पर ऑल्ट डी, तो मैं क्या करता हूँ, मैंने दिस शोज इनएक्टिव, ये इनएक्टिव है, इनएक्टिव इन द सेंस पहले मैं क्या करूंगा, ये जो मशीनरी का जो वोचर है इसको पहले डिलीट कर दूंगा। तो मशीनरी का वोचर्स कैसा है अपन यहाँ पर चेक करेंगे। अब वो मशीनरी का वोचर्स डिलीट सेलेक्ट करना है तो कैसा, गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, डिस्प्ले में जाएंगे, डे बुक में जाएंगे, यहाँ पर आने के बाद मशीनरी सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर एक्टिव है, एक्टिव क्यों हाईलाइट कर रहा है, और डी के नीचे एक डैश है, तो हम अभी क्या बोले, एक डैश रहा तो क्या बोलेंगे, ऑल्ट, वन डैश मीन्स ऑल्ट। ये देखिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ऑल्ट डी भी प्रेस कर सकते हैं, या ना तो ये बटन भी प्रेस कर सकते हैं, क्यों, ऑल्ट मीन्स वन डैश, तो मैं क्या करता हूँ, ऑल्ट प्लस डी टाइप करता हूँ, डिलीट, ये डिलीट हो गया, क्लियर, दैट मीन्स मशीनरी का वाउचर चले गया। एनी डाउट्स। अब मैं क्या करता हूँ, मशीनरी का लेडजर अब डिलीट होता क्या देखेंगे यहाँ पर, क्यों, इसमें से बैलेंस चले गया, गेटवे ऑफ टैली गए, लेडजर्स गए, ऑल्टर गया, आई विल सेलेक्ट मशीनरी, ये देखिए एक्टिव हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, मशीनरी में कुछ बैलेंस था, पहले मैं वो डिलीट किया, वो डिलीट करे तो ये एक्टिव हो गया, इसका मतलब अब मैं ये लेडजर को डिलीट कर दे सकता हूँ। तो अगेन एक डैश है, एक डैश, डी के नीचे एक डैश रहा तो ऑल्ट, ऑल्ट प्लस डी, या तो ऑल्ट प्लस डी सेलेक्ट करूंगा या डायरेक्टली ये आपको ये बटन सेलेक्ट करूँ, डिलीट हो जाता है। यस, क्लियर। अब मैं क्या करता हूँ, फिर से क्रिएट करेंगे लेडजर, बिकॉज हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके थे मशीनरी का। तो पहले डिस्प्ले में चेक कर लेंगे मशीनरी बना हुआ है नहीं है, मशीनरी इसमें नहीं है, एक भी इसमें नहीं लिखा मशीनरी का लेडजर नहीं। तो मशीनरी का लेडजर बनाने के लिए अगेन व्हाट वी हैव टू गो, क्रिएट, क्रिएट नया बनाने के लिए यहां से मैं मशीनरी बना दूंगा, मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद फिर मैं क्या करूंगा, व्हाट इज द मशीनरी, क्या में सेलेक्ट करना है, फिक्स्ड एसेट, वी हैव टू सेलेक्ट फॉर द फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट में सेलेक्ट करें अगेन। ये देखिए और एक चीज, अब मैं ऑलरेडी हम बोले थे, क्या बोले थे, ये सब चीज सेम है, आप कंट्रोल ए भी यूज कर सकते हैं ना। कंट्रोल ए का मतलब क्या है, कंट्रोल ए का मतलब क्या है, कंट्रोल ए का मतलब ये है कि आपको सेव भी होने का है, सेव भी होने का है, और जो है सो स्टेप भी स्किप करना है। अब ये स्टेप स्किप कर सकते हैं आप, कैसा, आप कंट्रोल ए बोल देंगे, ऑलरेडी हम कंट्रोल ए भी पढ़े थे, अभी सब चीज सेम है, आप कंट्रोल ए बोले तो सेव हो गया हो। तो कंट्रोल ए और ऑल्ट सी, फिर ये प्रैक्टिस करना है आप लोगों को, परसों जब करे थे अपन, ऑल्ट सी प्लस कंट्रोल ए। अब ये मशीनरी का बना मैंने बना,
फिर देखना है डिस्प्ले में, डिस्प्ले सेलेक्ट करें, मशीनरी, ये देखिए मशीनरी आ गया। सो दैट मीन्स कंट्रोल ए और ऑल्ट सी, ये दो समझना है। क्लियर? अब देखिए, अब मेरा और एक सवाल, अब इसमें लेडजर्स डिस्प्ले, अब देखिए इसमें और एक एक्सपेंसेस मैं ऐड करना चाह रहा हूं, कोई और दूसरे एक्सपेंसेस, जैसे कि पेट्रोल एक्सपेंसेस बोल के हैं। इसमें पेट्रोल एक्सपेंसेस है क्या? देखिए पोस्टेज एक्सपेंसेस है, पेट्रोल एक्सपेंसेस नहीं है। अब मेरा सवाल ये है, अब शॉर्टकट की से मैं डायरेक्ट पेट्रोल एक्सपेंसेस बनाना चाह रहा हूँ। अब वो कैसा बनाऊंगा? मैं स्टेप नंबर 1 स्किप करूंगा, फिर अकाउंटिंग वॉचेस में चले आऊंगा। उसके बाद मैं देखूंगा ये पेट्रोल एक्सपेंसेस तो पेमेंट ही होता, दैट मीन्स यहाँ पर वाउचर बराबर है। मैं यहाँ स्पेस बार सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं कैश सेलेक्ट करा, कैश सेलेक्ट करने के बाद एंटर बना, फिर मैं स्पेस लिस्ट में मैं देख लेता हूँ, अरे भाई पेट्रोल एक्सपेंसेस नहीं है। तो यही स्क्रीन से मैं क्या कर सकता हूँ नया अकाउंट बनाने के लिए? ऑल्ट प्लस सी, ऑल्ट प्लस सी, देखिए ऑल्ट यानी कि एक ही डैश, वन डैश, ऑल्ट प्लस सी टाइप करते ये स्क्रीन आया। यहाँ पर आने के बाद मैं क्या बोलूंगा? पेट्रोल एक्सपेंसेस, पेट्रोल एक्सपेंसेस बनाता हूँ। अब देखिए पेट्रोल एक्सपेंसेस में ऑलरेडी बनाया, एवरीथिंग भी सेम है यहाँ पर। सॉरी, एक काम करेंगे, हाँ पेट्रोल एक्सपेंसेस, अच्छा फिक्स एसेट है ना, तो इस काम करेंगे अपन फिक्स एसेट का एग्जांपल लेंगे। और कोई फिक्स एसेट का एग्जांपल बोलिए, फिक्स एसेट का एग्जांपल है ना कंप्यूटर, कंप्यूटर फिक्स एसेट है ना अभी। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ? बिकॉज मैं कंट्रोल ए जो शॉर्टकट की यहाँ पर फिक्स एसेट बाय डिफॉल्ट है, मैं खाली यहाँ से यहाँ पर टाइप कर दे के कंट्रोल ए जो है यानी कि डायरेक्टली सेव करना चाह रहा हूँ कंट्रोल ए का वर्ड, तो मैं क्या करता हूँ कंप्यूटर बनाता हूँ, बिकॉज कंप्यूटर, कंप्यूटर्स, तो मैं क्या करता हूँ कंप्यूटर क्या में आएगा? इट विल कम इन फिक्स एसेट, कंप्यूटर कम इन फिक्स एसेट, एवरीथिंग विल बी सेम। अब मैं यहाँ से स्टेप को स्किप करूंगा, स्टेप भी स्किप होना है और ये कंप्यूटर भी सेव होना है, स्टेप भी स्किप्स भी होना है और कंप्यूटर भी सेव होना है। मैं डायरेक्ट यहाँ से क्या टाइप करूंगा? कंट्रोल ए, सेव हो गया कंट्रोल ए। क्लियर? तो दैट मीन्स आप क्या है, अगेन फिर यहाँ पर मैं 40,000 में टाइप करा, अब मैं मेरे को क्या नरेशन की जरूरत नहीं है, अब यहाँ से भी आप कंट्रोल ए टाइप कर सकते। ये देखिए वो भी यहाँ लिखा हुआ है, कैसा? यहाँ पर एक्टिव है, ए के नीचे दो डैश, दो डैश यानी कि कंट्रोल, कंट्रोल प्लस ए। मेरे को नरेशन की कुछ भी जरूरत नहीं है, कोई सी भी चीज की जरूरत नहीं है, मैं ये स्क्रीन से डायरेक्टली सेव करना चाह रहा हूँ। या तो आप यहाँ से भी प्रेस कर सकते, डायरेक्टली प्रेस करें तो भी सेव हो जाएगा, खत्म, सेव हो गया। क्लियर? Yes, sir. चलिए, और कोई डाउट्स? कल देखेंगे वहाँ, ठीक है? आप लोग ये करिए, क्यों बोलो तो कल ही अपने को परचेज की एंट्री क्या है, सेल्स की एंट्री क्या है, कल मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन देता हूँ आपको, बिकॉज स्विच अपने को टाइम लग जाता ये एंट्रीज करे सक। तो कल इंशाल्लाह आप लोग करिए, नो प्रॉब्लम। अपने पास क्या है, बच्चे कम है लेकिन जो भी है नो प्रॉब्लम। क्या बात है, बिकॉज उन लोगों को अदर स्टूडेंट्स दे आर वर्किंग डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग, नो प्रॉब्लम, विल इन फ्यूचर विल सेट द बैच। लेकिन आप आज का जो एक्सप्लेनेशन समझ में आया नहीं आया वहाँ? आया सर, क्लियरली अंडरस्टूड। हाँ बिल्कुल, देखिए क्या है, सिंपल, हर कोई सी भी चीज हो सिंप्लीफाइड वे से। अच्छा ये कैसा आया भाई, अच्छा ये स्क्रीन, तो ये सॉफ्टवेयर बोले कि नहीं, एवरी सॉफ्टवेयर यू हैव टू लर्न द टाइमली कि भाई सिस्टम पे कैसा आ रहा, मैं मैनुअल कैसा लिख रहा हूँ। तो जब एज इट इज अब इस तरीके से इन फ्यूचर ऑल्सो अगर आप बड़े बड़े सॉफ्टवेयर भी अगर स्क्रीन करना है तो हमेशा याद रखिए स्क्रीन नेम पहले देख लेना, स्क्रीन नेम देख लेके जो इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं आप नोट्स में लिखेंगे। अच्छा एग्जैक्टली सिस्टम में सॉफ्टवेयर पे जो आ रहा एज इट इज, दिस इज नॉट फॉर द वन सॉफ्टवेयर, एवरीथिंग एवरी सॉफ्टवेयर यू कैन लर्न बाय लॉजिक, उसकी लॉजिक इस्तेमाल करेंगे। कोर्स के स्क्रीन पे क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वही स्टेप बाय स्टेप आप लिखे, यू विल लर्न इन वेरी लेस टाइम। क्लियर हो? चलिए माँ, क्लियर? तो आप ये प्रैक्टिस करिए, टुमारो अगेन विल गो फॉर दैट। तो जब तक ये देखिए फिर से मैं बोल रहा हूँ, अभी ऑल्ट प्लस सी है, आपको जैसा भी है
ये जो बटन्स है इसको आप वो करिए तो क्या हो जाता, आइडिया होता। मेन चीज क्या है देखिए, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी क्लैरिटी आती। क्लियर? नो प्रॉब्लम। जितने भी है अपने पास स्टूडेंट्स है, आई एम हैप्पी फॉर व्हाट हाउ मेनी स्टूडेंट्स, लेकिन नो प्रॉब्लम, इन द नेक्स्ट क्लास डेफिनेटली विल गेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। फिर भी आप अपने फ्रेंड्स को बोलिए माँ। क्लियर? हेलो? Okay, okay, sir. Yes, sir. और एक चीज Well, देखिए। हाँ, already और एक, informed you my option. हाँ बिल्कुल, और एक चीज देखिए, आफ्टर सम टाइम इवन वी आर प्लानिंग फॉर द अदर सॉफ्टवेयर्स आल्सो। एसएपी भी का भी इरादा है धीरे धीरे, वो भी आगे जाके आप एक बार अच्छा ये पूरा प्रैक्टिस कर लेंगे, बिकॉज ये चीज आगे की भी अपने को प्लानिंग करना है। देखिए, क्लियर? Yes, sir, inshallah. ओके मैम, ओके मैम, चलिए अल्लाह हाफिज। That's it.